Hello student, today I am going to discuss part 5th of principles of inheritance and variation. In this part we will discuss about the deviation from Mendeleev. Under this topic we will study about the incomplete dominance, codominance, multiple alleles and leuotropy. First we will discuss about the incomplete dominance. Before that we will discuss that what is exception to principle of dominance and principles of pair factor. Actually, we have discussed that Mendeleev means they are in an heterozygous individual, for example, having capital T, small t, one is expressed and dominant and other is not expressed and recessive. So this is one of the Mendel's law of dominance, in which if individual having the heterozygous type of allele, then one pair is expressed and other is not expressed in a generation. So this pair is written in capital letter is expressed and plant is tall, and the allele for which is recessive and responsible for dwarfness is not expressed. So this is the Mendelian principle or law. But what here we find that in incomplete dominance is the phenomena where none of the two contrasting alleles of or factor is dominant. The expression of the character in a hybrid or F1 individual is intermediate. The F2 generation shows this ratio. Phenotypic ratio is 1:2:1, whereas in Mendelian ratio the phenotypic ratio is 3:1. तो मेंडल के जो प्रिंसिपल है, लॉज है, उसके अकॉर्डिंग जो रेशो हमें मिलता था वो 3:1 मिलता था, लेकिन यहाँ जो फिनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 मिलता है. तो इसको हम डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म कहते हैं, यानी मेंडल्स के जो लॉ हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं. एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि इट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये एक ऐसा फिनोमेना है इन विच नन ऑफ द टू कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स ऑफ फैक्टर इज कम्प्लीटली डोमिनेंट. कोई सा भी फैक्टर कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं करता है. इसका रीज़न क्या है कि द वाइल्ड टाइप अलील इज फुली फंक्शनल allele, whereas mutated allele produces a faulty product or no product at all. If mutated allele produces a modified product, then it gives rise to incomplete dominant or codominant allele. What happens here कि जो wild type alleles हैं, wild type alleles are the normal or natural alleles. In wild type allele, they produce a normal mRNA and they produce a normal protein, and they produce a normal effect. Here normal expression is found. So wild type allele are the natural or normal type of allele, and they produce a normal mRNA protein, and they express their character normally. But in mutated allele, if this allele is mutated, means there may be some addition, deletion, insertion of genes may take place. In mutated allele, they also produce mRNA, but they produce either a faulty protein, or we can say a faulty product. Product is always a protein in case of gene expression, or no product at all. So
So this is the reason why a allele do not show 100% dominance over the recessive allele, because there is some mutation occurs in that allele, and a mutated allele, they produce a normal mRNA or a faulty mRNA, which produce either a faulty product or no product at all. यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर दो अलील्स अगर हैं, सपोज एक x है और एक स्मॉल y है, ये अलग ट्रेट का है और ये अलग ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ ये वाला नॉर्मली अकॉर्डिंग टू मेंडल इसको एक्सप्रेस होना चाहिए, ये रिसेसिव होना चाहिए इस वाले को, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो डोमिनेंट है ये 100% डोमिनेंस शो नहीं करता है, इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जो एक्स अलील है ये 100% अगर डोमिनेंस होगा, जैसे मेंडल के केस में था कि कैपिटल टी ये 100% डोमिनेंस शो करता है, इसलिए प्लांट यहाँ पर टॉल होता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो डोमिनेंट जीन है इट इज़ नॉट 100% effective or express itself. That's why both the character are expressed, recessive and the dominant. We will see how this cross takes place and in what type of plant this type of thing is found. It is found in 4 o'clock plant, or it is known as Mirabilis jalepa or 4 o'clock plant, Anthridium, Antirrhinum majus or snapdragon or dog flower. So these are the two types of flower plant in which their flower do not show the Mendelian they do not obey the Mendelian laws or principles. There is a deviation is found. What happens when a red color flower of this 4 o'clock plant, when this 4 o'clock plant, a red color flower is crossed with a white color flower, this is red color flower and this is white color flower. Here gametes will be formed. These white are the recessive and red color are dominant. So here R and small w and a small w is formed. After fertilization, RW and again RW is formed. So this is F1 जनरेशन। अगर ये मेंडलिज्म को फॉलो कर रहा होता ये क्रॉस, तो सारे फ्लावर किस तरह के होते, रेड कलर के होते अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ। लेकिन यहाँ जो फ्लावर है एक ये इंटरमीडिएट कलर शो करता है, पिंक कलर शो करता है, यानी यहाँ पर जो रेड कलर का इफ़ेक्ट है वो 100% एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए वाइट और रेड मिलकर एक पिंक फिनोटाइप यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक पिंक कलर यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है। अब अगर F1 प्लांट में से हम कोई से भी दो प्लांट लेते हैं, RW and RW, both of they are showing here the color of the flower is pink, here also the color of the flower is pink. Gamete will be formed, RW, R and W, they will separate to two different gametes according to law of segregation. At the time of fertilization, R will be formed, RW will be formed,
Here also RW will be formed and WW will be formed. Up here this flower will be a red flower. These two flowers will be pink and this one will be a white flower. अब अगर यहाँ पे हम फिनोटाइप देखें, फिनोटाइपिक रेशियो अगर देखते हैं तो यहाँ 3 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, रेड, पिंक एंड वाइट। रेड कितने तरह के हैं? एक। पिंक कितने हैं? यहाँ पर 2 पिंक बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, दे आर 2 पिंक फ्लावर, so 2 and only 1 flower is white। तो ये रेशो इस प्लांट में जो रेशो मिलता है फिनोटिपिक रेशो 1:1:1:2:1 मिलता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन लॉ जो फिनोटिपिक रेशो मिलता है आफ्टर F2 जनरेशन वो है 3:1। तो इसीलिए इसको हम डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म कहते हैं, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग आफ्टर F2 जनरेशन के बाद जो रेशो मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए। यहाँ पर F2 जनरेशन के बाद जो रेशो मिल रहा है वो 1:2:1 मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस में यहाँ पर जो कैपिटल R स्मॉल w है, तो जो डोमिनेंट अलील है, यानी जो डोमिनेंट अलील है कैपिटल R, ये 100% डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसका रीज़न आपको बता दिया है, लास्ट पेज पर ये दिया हुआ था कि या ये म्यूटेटेड होता है, ये नॉर्मल वाइल्ड टाइप अलील नहीं है, ये म्यूटेटेड अलील है। और म्यूटेटेड अलील एक फॉल्टी प्रोटीन बनाता है और ये फॉल्टी प्रोटीन इस अलील को 100% एक्सप्रेस करने में नहीं कर पाता है, इसलिए जो रेड कलर है वो 100% एक्सप्रेस नहीं होता है, तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करता है और एक इंटरमीडिएट कलर पिंक कलर यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस। Codominance means both the dominant alleles, they are expressed at the same time. Here you can see that codominance, both the alleles of a gene are equally dominant. दो डोमिनेंट अलील अगर अलग अलग ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और एक साथ प्रेजेंट हैं तो वो दोनों एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। मेंडल ने ऐसा कोई लॉ नहीं दिया था कि जिसमें दो डोमिनेंट अलील जो अलग अलग ट्रेट वाले हैं और एक साथ हैं तो दोनों एक साथ एक्सप्रेस होंगे या नहीं होंगे। मेंडल ने सिर्फ इतना कहा था कि एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, और डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव नहीं कर पाता है। यहाँ पर एक नया केस आता है कि दो डोमिनेंट अलील एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और एक फिनोटिपिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। इफ़ दे आर प्रेजेंट टुगेदर बोथ एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स इक्वली इन द फिनोटाइप। Alleles for blood group A is IA and blood group B is IB are codominant. When they come together in an individual, they produce blood group AB. This is one of the best example to understand codominance. Actually, there are three alleles are present: IA, IB, and IO. It is responsible for the blood group A, and this one is dominant one. This allele is dominant. This allele is also dominant. And this allele is recessive. We also have discussed that for each character
there will be only 2 alleles. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक कैरेक्टर के लिए किसी भी इंडिविजुअल के पास सिर्फ 2 अलील्स हो। इसी तरह ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा नहीं है, किसी एक पर्सन के अंदर ये तीनों अलील्स नहीं पाए जाएंगे, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन का मतलब है अगर आई ए है 2 ही अलील होंगे। यहाँ पर एक पर्सन के अंदर सपोज आई ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर आई बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर आई बी है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। अगर आई ओ है तो इसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि अगर ये आई ओ होगा तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी तरह यहाँ पर आई ओ होगा तब भी ब्लड ग्रुप ओ होगा। यहाँ पर जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है दिस ब्लड ग्रुप in which there are two alleles for different character present at the same time, present in a same individual, and both of they are dominant. Here IA is also dominant, IB is also dominant, and they are expressing themselves at the same time. दोनों अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसलिए इसको हम को डोमिनेंस कहते हैं। तो दिस इज को डोमिनेंस सिर्फ ये है कि अगर 2 डोमिनेंट अलील एक साथ किसी एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हैं और वो दोनों ही अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसको को डोमिनेंस कहा जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल अलील्स। नाम से ही पता चल रहा है, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट फॉर ईच कैरेक्टर there are only 2 alleles present in an individual. But this is Mendelian law. It is according to Mendel. But here for each character there may be more than 2 alleles. In a population. किसी भी पॉपुलेशन में अगर किसी एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा अलील प्रेजेंट हैं तो इसको हम मल्टीपल अलील कहेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं फिर से ब्लड ग्रुप का। Blood group is one character, and there should be only 2 allele to control this blood group, but actually there are 3 alleles, IA, IB, IO। तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या है या कैरेक्टर क्या है? ब्लड ग्रुप है, और इस ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूरे ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन में देखा जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलील्स प्रेजेंट टू कंट्रोल वन कैरेक्टर। तो इसी को हम मल्टीपल अलील कहते हैं। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ more than
टू अलील्स ऑफ ए जीन, किसी भी जीन में दो से ज़्यादा अगर अलील प्रेजेंट हैं तो इसको मल्टीपल अलील कहा जाता है। और हमने ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल्स से इसको समझ लिया है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी बुक्स में दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई कलर इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज कंट्रोल्ड बाय 15 different types of allele which are recessive to the wild life of allele for red color are present in Drosophila, dominant over white color। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर आई कलर को कंट्रोल करने के लिए पूरी पॉपुलेशन में 15 डिफरेंट टाइप के अलील्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक कैरेक्टर है आई कलर, उसको कंट्रोल करने के लिए 15 टाइप के अलील्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको मल्टीपल अलील कहा जाता है। ये इसी तरह है जैसे ह्यूमन बीइंग में सिर्फ एक कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप, इसको कंट्रोल करने के लिए 3 अलील्स पाए जाते हैं। तो किसी भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए अगर दो से ज़्यादा अलील प्रेजेंट हैं किसी इंडिविजुअल में तो इसको मल्टीपल अलील कहा जाएगा। Next is leurotrope. In this phenomena, a single gene product may produce more than one phenotypic effect। देखिए मल्टीपल अलील्स में हमने क्या पढ़ा था कि फॉर वन कैरेक्टर there may be many alleles। or more than टू अलील्स। तो ये हमने अभी डिस्कस किया, ये मल्टीपल अलील के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर इसका उल्टा हो गया है। Here it is given that a single gene product may produce more than one phenotypic effect. It means that a pair of allele we can write that pair of allele it controls more than one character। तो देखिए ये लियोट्रॉपी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैरेक्टर को करने के लिए बहुत सारे अलील्स थे, यहाँ पर एक अलील बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये इसका बिल्कुल एंटागोनिस्टिक एकदम अपोजिट हो गया कि यहाँ सिंगल कैरेक्टर है, उसको कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल अलील्स हैं, यहाँ पर सिंगल अलील है और ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन ए कॉटन जीन फॉर द लिंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द हाइट ऑफ द प्लांट। कि कॉटन के अंदर क्या होता है, एक जीन जो लिंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये प्लांट की हाइट, साइज ऑफ द बॉल, नंबर ऑफ ओव्यूल एंड वायबिलिटी ऑफ सीड। यानी जीन एक है जो कॉटन के लिंट कॉटन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये प्लांट की हाइट को भी कंट्रोल कर रहा है, प्लांट बॉल के साइज को भी कंट्रोल कर रहा है, नंबर ऑफ ओव्यूल को भी कंट्रोल करता है और वायबिलिटी ऑफ सीड्स के लिए भी कंट्रोल करता है। सिमिलरली इन ड्रोसोफिला ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस size of the wing, portion of the dorsal bristle, eye color, shape of the spermatheca, fertility and longevity। ड्रोसोफिला में भी जीन एक ही है, लेकिन ये बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल और लियोट्रॉपी में क्या डिफरेंस है। ये बिल्कुल उल्टा है। हेयर ए सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी अलील्स
and here a single allele controls many characters.